اور بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے آج کی بڑی خبر رسانہ معاملے میں کورٹ کے فیصلے کی۔ رسانہ اجتماعی عصمت ریزی و قتل معاملے میں پٹھان کوٹ عدالت نے 7 میں سے 6 ملزمین کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 3 مجرمین کو عمر قید اور باقی 3 کو 5-5 برس کی سزا سنائی ہے۔ اس فیصلے سے متاثرہ کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے والے اور عام لوگوں میں کافی خوشی پائی جا رہی ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ کٹھوعہ عصمت ریزی اور قتل کیس کا آیا فیصلہ، 6 مجرمین کو سزا کا اعلان، 3 مجرمین کو ملی عمر قید کی سزا، باقی 3 مجرمین کو 5-5 برس کی سزا۔ کٹھوعہ واقعے نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جموں کشمیر میں کٹھوعہ ضلع کے رسانہ میں 8 سالہ معصوم بچی کو اجتماعی طور پر ہوس کا شکار بنانے کے بعد اسے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا۔ نہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں اس انسانیت سوز واقعے کی شدید مذمت کی گئی اور مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب عدالت نے قصورواروں کو ان کے گھنونے جرم کی سزا سنا دی ہے۔ پٹھان کوٹ کے سیشن عدالت نے فاسٹ ٹریک بنیادوں پر 1 سال تک سماعت کے بعد اس کیس میں اپنا فیصلہ سنایا۔ 8 ملزمین میں سے عدالت نے 6 کو سزا سنائی ہے، 3 مجرمین کو عمر قید اور باقی 3 قصورواروں کو 5-5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اہم ملزم سانجھی رام، دیپک کھجوریا اور پرویش کمار کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہیں ایس آئی آنند دتا، ہیڈ کانسٹیبل تلک راج اور ایس پی او سریندر ورما کو ثبوت مٹانے کی کوشش کے جرم میں 5-5 برس کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے کیس کے ایک ملزم وشال جنگوترا کو بری کر دیا ہے۔ وہیں ایک ملزم نابالغ ہے جس کے کیس کی ابھی سماعت بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ Imprisonment for life in section 302 and in section 376D 25 year each, 1 lakh to Sanji Ram, Parvesh and Deepak Khajuria, 1 lakh fine and 50,000 fine in 25 years. 201 میں تھے کنوکٹڈ تھے، ان کو 5-5 سال کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو پولیس والے 3 تھے۔ تو سانجی رام پرویش اور اس کو اپنا دیپک کھجوریا کو 376D میں 25 سال 50,000 روپے جرمانہ اور 302 میں لائف امپریزنمنٹ اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ان کو سزا ہوئی ہے۔ دفاعی وکیلوں کا کہنا ہے کہ وہ عدالت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ So we were saying that this is not a case where a conviction can be done. It is not a case where the evidence is of such a high degree or such standard that you can convict people under you see this heinous offences. The standard of proof has to be very, very high. So we are very surprised that this judgment has come, and we believe seriously that this is a bad judgment. We are going to challenge it, and obviously all of the remedies available under law will also be we'll undertake all those remedies as well. عدالت کے اس فیصلے کا مختلف گوشوں سے خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور اسے انصاف کی جیت قرار دیا گیا۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس پورے واقعے پر۔ بکروال طبقے سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ معصوم بچی 10 جنوری 2018 کو کٹھوعہ کے رسانہ گاؤں میں اپنے گھر سے کچھ دور گھوڑے چرانے گئی تھی، جہاں اسے اغوا کر لیا گیا۔ 4 روز تک اس کے ساتھ حیوانیت کا مظاہرہ کیا گیا اور اس کمسن بچی کو جنسی زیادتی کا شکار بنایا گیا۔ 17 جنوری کو متاثرہ کی لاش اس کے گھر سے 1 کلومیٹر دوری پر ملی تھی۔ 22 جنوری کو کیس کرائم برانچ کے حوالے کیا گیا۔ اس کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں، جن پر ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کا الزام تھا۔ ایک نابالغ ملزم کو چھوڑ کر 7 ملزمین کے خلاف اپریل میں کٹھوعہ پرنسپل سیشن کورٹ میں کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے 7 مئی کو اس کیس کی سماعت جموں کشمیر سے پٹھان کوٹ پنجاب منتقل کرنے اور اسے فاسٹ ٹریک بنیادوں پر کرنے کی ہدایت دی تھی۔ سماعت کے دوران 114 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے اور 10 جون
2019 को पठानकोट की सेशन अदालत ने कसूरवारों की सजा का ऐलान किया। कठुआ वाक़े पर सियासत भी खूब हुई और उस वक्त की हुक्मरां पार्टियां पीडीपी और बीजेपी के बीच काफी ठन गई थी। मुलजिमीन की हिमायत में मुनक्किदा एक रैली में शिरकत पर बीजेपी के 2 वुज़रा को ओहदे से भी हटा दिया गया था। वहीं मुल्क भर में इस वाक़े पर शदीद बरहमी जाहिर की गई और जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले थे। आइंदा इस तरह के वाक़यात का इआदा न हो, इसके लिए मुजरिमीन को इबरतनाक सजा का मुतालबा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आईजीपी क्राइम एसए मुज्तबा ने कहा कि रसाना मामले में 114 शाहिदीन को कोर्ट में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि सबूत और शाहिदीन से हासिल शुदा जानकारी की बिना पर फैसला सुनाया गया है। 14 गवाह इस पर पेश किए, 114, और हमने एक भी एडजॉर्नमेंट नहीं मांगा और लगातार जो है हमने अपने विटनेसेस पेश किए। उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो विंडिकेट हो गया हुआ है कि 6 लोगों की कन्विक्शन हो गई है। इसके अलावा भी हमको भी जजमेंट के कुछ पोर्शन के साथ कुछ हो सकता है कि हम एग्री ना करते हों, उसका एक फोरम है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है एक्विट किया गया है, मैंने अभी एग्जामिन नहीं किया हुआ है कि जजमेंट में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में, लेकिन उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपील में जाएंगे। इसी तरह से जिन लोगों को ये लगता है कि जी की ट्रायल में उनके साथ शायद जस्टिस नहीं हुआ है तो वो भी अपील में जा सकते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, अभी तक ट्रायल कोर्ट में जो विटनेसेस पेश किए हैं उसके मुताबिक ये दोषी पाए गए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कठुआ मामले से मुताल्लिक फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि ये केस दूसरों के लिए सबक बनना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी इंसानियत सोज हरकत करने की हिम्मत न करे। नहीं, हम अदालत के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा। मुझे खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया, और ख़ासकर जो हमारी क्राइम ब्रांच है और उसके साथ जो हमारी पुलिस के लोग हैं, और जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थे, जिस लेडी ने इस केस को उस वक़्त लड़ने की पहल की, और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, इनका सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सब ने मिलजुल के जो काम किया उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ हो, तमाम प्रेशर्स के बावजूद मुझे लगता है वो कम है। और इससे हमारी जो जुडिशरी है, हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है, उसमें लोगों का यकीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो है रेप्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। एक तो इसको क्रिमिनलाइज करना और पोलिटिसाइज करना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है कि हमारे मुल्क में दूध पीती बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता है। और उसके बाद उसको ये मुसलमान थी, ये हिंदू थी, किसने रेप किया, मुस्लिम ने किया, हिंदू ने किया, सिख ने किया, तो ये झगड़ा होता है। ये बात नहीं होती है कि भाई ये बच्ची थी, इसके साथ हैवानियत हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने रसाना केस से मुताल्लिक फैसले को तारीखी करार दिया। उन्होंने जांच एजेंसियों के काम की भी सताइश की। ये तारीफ और हिस्टोरिकल डिसीजन है जिसकी तारीफ होनी चाहिए हर जगह, हर लेवल पे। इंसान सोच जो हरकत हुई थी उसके जजमेंट को देखकर मेरे ख्याल में जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त सड़कों पे आए थे उनको तसल्ली मिली होगी, तशफ़ी हुई होगी कि ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी हिस्टोरिकल और रिमार्केबल जजमेंट दी है। और साथ साथ जो इसमें एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, उन्होंने भी जो काम किया है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी एक खूबसूरती है जमहूरियत की। लिहाजा आज फिर जुडिशरी से मालूम हो गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और जो उन्होंने डिसीजन दिया वो सही डिसीजन दिया, और जो लोग कुछ अंदेशे थे लोगों को वो गलत साबित हुए, और कोर्ट ने जो डिसीजन, जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो दी है। रसाना केस में आए अदालत के फैसले पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने इत्मीनान जाहिर किया है। पार्टी तर्जमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि अदालत ने केस की फास्ट ट्रैक समाअत की, जिसकी समाज के मुख्तलिफ तबकों ने सताइश की है। बात यह है कि भाई
इस केस में बहुत जल्द सुनवाई हुई और काफ़ी गवाह होने के बावजूद जज साहब ने भी और अदालत ने फास्ट ट्रैक बेसिस पे स्पेशल कोर्ट ने एक बहुत जल्दी से इसका फैसला सुनाया है, क्योंकि इस तरह के मामलात में बिल्कुल फास्ट ट्रैक बेसिस पे ट्रायल होनी चाहिए। तमाम जो मामले लंबित हैं देश भर में, रियासत जम्मू कश्मीर में, हमारी ये अपील होगी कि इसी तरह से फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनके जो है वो केस के फैसले होने चाहिए और जो दोषी हैं उनको सज़ा हो, ताकि इस किस्म के जो वारदातें हैं वो जो है उन पर कोई ना कोई अंकुश लगाया जा सके। इसलिए हम मुबारकबाद देंगे अदालत को भी और जुडिशरी को कि इस देश में जुडिशरी का बहुत सम्मान इसीलिए है कि जुडिशरी निष्पक्ष है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इमरान रजा अंसारी ने कठुआ इस्मत दरी केस से मुताल्लिक अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। अंसारी ने कहा कि अदालत का यह फैसला आइंदा नस्लों के लिए नसीहत आमूज बन जाएगा। अंसारी ने जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से सबूतों को जमा करने पर भी उनकी सताइश की। इमरान रजा अंसारी ने इन बातों का इजहार हाजीबीरा पटन में किया है। जो ये जजमेंट आई है इसका पूरी तरह से खैर मकदम करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से। ये एक ऐसा स्टेप है कि जिसको हम सबको वेलकम करना चाहिए। ये हर एक की बेटी है। देखिए, आपने देखा होगा कि इस केस को बहुत ही ट्विस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का भी इसमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी जो फाइंडिंग्स थी और जो जैसे उन्होंने केस को परस्यू किया उसमें ये साबित हो गया कि बच्ची के साथ नाजायज़ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में ये जस्टिस मिली है। और मुझे लगता है कि जो आज की जजमेंट आई है इससे इंशाअल्लाह ये आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल रहेगा कि वो कोई ऐसी हरकत करने की बिल्कुल दिमाग में सोचेगा नहीं। बीजेपी के सीनियर लीडर अश्विनी कुमार ने रसाना केस में अदालत के फैसले को नाक़िस करार दिया है। अश्विनी कुमार श्रीनगर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। बीजेपी लीडर के मुताबिक अदालती फैसले के मयारात एक दूसरे से मुतसादिम है। उन्होंने कहा कि मुल्जिम आला अदालत से इंसाफ हासिल कर सकते हैं। याद रहे कि अश्विनी कुमार कश्मीर उमूर के तर्जुमान होने के अलावा माइनॉरिटी और ह्यूमन राइट्स कारकुन भी हैं। है वो इन itself lawful है। So you are not accepting the judgment? No, we are accepting the judgment because the court has given it, but the court has also said that it can be challenged in the higher court. So the option is open. So are you saying that it's a flawed? It is a flawed judgment. It is a flawed judgment. It is a flawed judgment because of the fact that you cannot give one kind of a relief to someone for the same crime and convict others for the same crime. ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक आदमी को उसी क्राइम के लिए छोड़ रहे हैं और बाकियों को आप सजा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रसाना में 8 बरस की लड़की के रेप और कत्ल केस में बढ़ चढ़कर पैरवी करने वाले एडवोकेट तालिब हुसैन ने अदलिया का शुक्रिया अदा किया है। तालिब हुसैन ने कहा कि मुतासरा के अफराद खाना अदालत के फैसले से खुश हैं। इस मामले को लेकर फरकावराना सियासत करने वालों को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। एडवोकेट तालिब हुसैन हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट से बात कर रहे थे। अदालतों ने जिस तरह से हमने हमेशा ही ये कहा है कि इस मुल्क की अदालतों पे, इस मुल्क के कानून पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन है और शुरू से ही पिछले 1.5 साल की लड़ाई में हमने हमेशा यही कहा है कि हमें इस मुल्क की कोर्ट पे यकीन है, चाहे उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू हो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हो या पठानकोट सेशन कोर्ट हो। आज उन्होंने ये साबित किया है कि इस मुल्क के अंदर चाहे हुकूमतें जैसी भी हों, आप किसी भी मसले को जितना मर्जी कम्युनलाइज कर लीजिए, जितना मर्जी आप कम्युनल टेंशन करने की क्रिएट की कोशिश कीजिए, लेकिन इस मुल्क की अदालतें ज़िंदा हैं। और जो पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, आज इस फैसले से इस मुल्क की अदालतों ने, सियासत ने तो नहीं, लेकिन इस मुल्क की अदालतों ने आज ये साबित किया है कि हाँ वाकई ये बात बिल्कुल सही है। और आज खराज तहसीन पेश करते हैं हम उस बच्ची को कि उसकी रूह को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में तो है ही है वो, और खराज तहसीन के तौर पे हम ये गुजारिश करते हैं आपके इस चैनल के थ्रू कि जिन लोगों ने जम्मू के अंदर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की, जम्मू के अंदर हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश की, इस केस को पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया, इस केस को हुर्रियत के साथ जोड़ा गया, खुद मुझे हुर्रियत के साथ, पाकिस्तान के साथ और खुदा जाने कहाँ कहाँ जोड़ा गया, जेल में रखा गया, जेल में पीटा गया, तो उन सारे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान की गोलाबारी में एक फौजी जवान शहीद हो गया है।
शहीद जवान की शनाख्त जावेद इकबाल के तौर पर हुई है। ताहम आर्मी की जानिब से शहादत की कोई खबर नहीं दी गई है। फायरिंग की जद में आकर दूसरा जवान जख्मी हुआ है। जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने बिलाश्तियाल फायरिंग की। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का माकूल अंदाज में जवाब दे रही है। ये शहीद जवान को ले जाने की एक्सक्लूसिव तस्वीर हैं। आज 4:30 बजे अचानक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हुई है। इस दौरान फौजी चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। जिला गांधरबल के तुलमुल में मेला खीर भवानी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। माता खीर भवानी के नाम से मशहूर रगनिया देवी के मंदिर में माथा टेकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अकीदतमंद पहुंचे। इस दौरान मुसलमानों और पंडितों के दरमियान मोहब्बत के गहरे रिश्तों का ज़हूर देखा गया। देखिए जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से आए हजारों श्रद्धालुओं से गांधरबल का तुलमुला इलाका किसी त्यौहार का खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। माता रगनिया देवी से कश्मीरी पंडित बेहद अकीदत रखते हैं और देवी से मोहब्बत और इज्जत का इजहार करने के लिए हर साल यहाँ खीर भवानी त्यौहार मनाया जाता है। चिनार के कदावर दरख्तों की छांव में मौजूद मंदिर आने वाले अकीदतमंदों का तांता बंद गया था। यहाँ आए इन अकीदतमंदों में ज्यादा तादाद कश्मीरी पंडितों की है। ये लोग मंदिर के आसपास मुख्तलिफ रसूम अंजाम देते हैं और मंदिर में पूजा पाठ के दौरान मुकद्दस चश्मे को दूध और खीर का नजराना पेश किया जाता है। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल बड़ी तादाद में अकीदतमंद इस मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं। बोलते हैं जेठ अठम, कोशिश मना जेठ अठम एंड पंजाबी में ज्येष्ठमी बोलते हैं। तो ये एनुअली होता है यहाँ पे हवन, जहाँ पे सारे कश्मीरी पंडित ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे थ्रॉन्ग करते हैं। इस साल भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये बड़ी महानता है इसकी कि इस दिन यहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो वी हैव बीन वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। इस बार हमको कोई बड़ा वेलकम किया गया है यहाँ पे लाने के लिए। उधर मकामी मुस्लिम भाइयों का तो कहना ही क्या, उन्हें भी यहाँ पंडितों से मेल मिलाप बढ़ाने के लिए पूरे साल शिद्दत से इस खीर भवानी मेले का इंतजार रहता है। इस तारीखी मंदिर में फिरक़ेवाना हम आहंगी के ऐसे मनाजिर देखे जाते हैं जो कि मिसाल है। ये त्यौहार अपने वतन से माइग्रेंट कर जाने वाले पंडितों से मुलाकात का मुसलमानों को एक मौका फराहम करता है और इस दौरान यहाँ काफी जज्बाती मनाजिर देखे गए। शोरश के सबब वतन छोड़ने वाले पंडितों ने इस मौके पर मकामी मुसलमानों को खुलकर गले लगा लिया। खुशी महसूस हो रही है मुझे कि हम आज फिर मिल रहे हैं। अल्लाह करे कि हम हमेशा एक ऐसे ही मिलें, हमेशा। ये जो हमसे जुदा हो गए हैं ये वापस आए, हमारे साथ रहें। जैसे आज हम मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसे ही जैसे सदियों से हमारे बाप दादा मिल के रह रहे हैं, वैसे ही हम भी आज रहें, क्योंकि इनके बगैर हम अधूरा समझते हैं अपने आप को। मानता हूँ कि यही माता रानी हमें फिर एक बार कश्मीर में फिर अपने घरों में बसाएगी, ताकि हम वही जो 90 से पहले अमन चैन या जो हमारी कश्मीर वादी में हो वही दोबारा लौट के आए। चाहते हैं कि वो माहौल फिर से हो जाए, हमारा भाईचारा एक जैसा हो जाए। एंड वी रियली वांट टू कम बैक टू कश्मीर एज अ सिटीजन, वी वांट टू लिव टुगेदर। ये सालाना त्यौहार मकामी मुसलमानों के लिए भी आमदनी का जरिया बनता है। मुख्तलिफ रिवायती रसूम के लिए दरकार सामान मुहैया कराने के लिए मुसलमान मर्द और ख़वातीन यहाँ अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं। यहाँ सरकारी इंतजामिया की जानिब से फराहम की गई सहूलियात को भी बेहद सराहा गया। दीगर बुनियादी सहूलियात समेत इलाके में मुनासिब तिब्बी खिदमात दस्तयाब कराई गई और खैर सगाली के इक़दामात के तौर पर सियासी जमातों और इलाके की तंजीमों ने भी श्रद्धालुओं को अपनी अपनी खिदमात फराहम की। माता खीर भवानी का मेला आज रवायती तौर पर जोशो खरोश से मनाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और रियासत की खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। यहाँ पे मुसलमान और जो पंडित बरादरी है आपस में
ऐसे मिले और ऐसे जज्बाती मनाजिर भी देखे गए और उन्होंने ये ख्वाहिश की कि पंडित बरादरी वापस अपने घरों में आए ताकि फिर से वो फ़ज़ा कायम हो सके। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, तुलमुला, गांधरबल। इस बीच वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ज्येष्ठ अष्टमी की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने इस सिलसिले में कश्मीरी जबान में मुबारकबादी से मुताल्लिक ट्वीट किया। मोदी ने अमन व तरक्की की प्रार्थना की। ज्येष्ठ अष्टमी के सिलसिले में कश्मीरी पंडितों की तरफ से जम्मू में खुसूसी प्रोग्राम का इनकाद किया गया। जम्मू के जानीपुर इलाके में कायम माता खीर भवानी के स्थापन पर कल शाम से ही एक यज्ञ रचाया गया, जिसकी पूर्ण आहुति आज दी गई। काफी तादाद में दिन भर श्रद्धालु माता खीर भवानी के स्थापन पर हाजिरी देते रहे। कश्मीरी पंडित आज के दिन वादी में माता के स्थापनों में हाजिरी देते थे। तहम वादी से माइग्रेशन के बाद श्रद्धालुओं ने जम्मू में भी माता का स्थापन कायम किया और यहाँ हर साल यज्ञ और खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम होता है। इस मौके पर अमन आलम खासकर रियासत में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। कश्मीर को बहुत मिस करते हैं। अगर हम उधर होते तो आज उधर ही होते तो बहुत मज़ा आता उधर। हमारा मन करता है कि हालात ठीक हो जाए और हम भी सब परिवार सहित अपने घर चले जाएं। प्रार्थना करते हैं कि इस जम्मू कश्मीर के हालात जल्द ही जल्द सुधर जाए और सारे जो हम यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों को बैठ जाए। प्यार से वहाँ वो मनाते हैं और अपने भाइयों के साथ जो वहाँ के रहने वाले उनके साथ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और यही प्रार्थना हमारे भगवान से है कि हालात सुधर जाए। यही लग रहा है कि मैं अपनी माता के चरणों में कश्मीर में बैठा हूँ, मगर हूँ माइग्रेंट नाम जो हमारा पड़ा है, इट्स नॉट माइग्रेंट, एक्चुअली वी आर डिस्प्लेस्ड लोग कश्मीर गए हैं ज्येष्ठ अष्टमी के लिए और यात्री बन के गए हैं। ये साने की बात है। सरकार को चाहिए था कि हमें ले जाएं, नॉट एज यात्री। मेला खीर भवानी टिकरपुरा में भी जोश खरोश के साथ मनाया गया। कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मकामी मुसलमानों ने भी इसमें हिस्सा लिया। जम्मू, दिल्ली और दीगर मकामात से आए कश्मीरी पंडितों का मुसलमानों ने वालहाना इस्तकबाल किया। पंडितों की आमद पर यहाँ जज्बाती मनाजिर देखे गए। पहली मरतबा वादी आने वाले कश्मीरी पंडित नौजवानों में काफी जोश व खरोश देखा गया। कश्मीरी पंडितों ने वतन वापसी की ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि वो हालात साजगार होने के मुंतजर हैं। कश्मीर में अमन अमान की बहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कश्मीरी पंडितों ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। असल पार्ट आसान ये इंतजाम आज सू इंतजाम ये असल पार्ट गए खुश वारिया रश तु खुश गई ये माता रानी कर अमी सोरे दितमुत ये वात अंद त अम सुंद सोरे कह प्रत कुन जाए सोरे कठे असल पार्ट बाय बरादरी असल कुन रंग कह तकलीफ या कह चीज। यहाँ हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट देखा। यहाँ मुस्लिम लोग साथ साथ चल रहे हैं अच्छी तरह से। यहाँ भाईचारा है, अरेंजमेंट भी यहाँ लोकल्स की तरफ से भी बहुत बढ़िया। हमें बहुत सारा इन्होंने अच्छी तरह से ट्रीट किया है। यहाँ पे हवन भी चला और हम ये भगवान से प्रार्थना करें उस माता से कि यहाँ फिर से वैसे हालात रहे और शांति आ जाए, सभी आपस में हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है और बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉपरेशन बहुत किया है हमारे साथ। और जिस हर कोई महकमा जो यहाँ पर इस वक्त हाजिर है और जो कोई भी महकमा इसमें इन्वॉल्व है उन्होंने हमारे साथ पूरी तरह से कॉपरेट किया है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में अनंतनाग के लोगरीपुरा इस मकाम में कायम माता के स्थापन पर एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने शिरकत की। मंदिर में खुसूसी पूजा और हवन का भी एहतमाम हुआ। अकीदतमंदों ने कश्मीरी में भजन गाए। पंडितों ने कश्मीरी मुसलमानों के ताउन की बेहद सराहना की और वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। मकामी लोगों के ताउन से ही साल 2011 में लोगरीपुरा के तारीखी मंदिर को दोबारा खोला गया था। लोगरीपुरा के इस तारीखी मकाम का जिक्र कश्मीर की कदीम तारीख राज तरंगनी में भी है। जो ये फंक्शन होता है ये यहाँ प्रथा चल रही थी तो लेकिन 1990 में माइग्रेशन की वजह से थोड़ा 10-15 साल ये बंद रहा। उसके बाद 2011 से हमने फिर शुरू किया तो उसके बाद तब से आज तक फंक्शन चलता आ रहा है। यहाँ यज्ञ जो हो रहा है इस माता ने हमको 4 साल से इधर बुलाया है। हमारे यहाँ के ये भाई जिन्होंने मंदिर इतना साज दाज कर रखा जबकि हम यहाँ थे ही नहीं।
आप खुद देख लेंगे, हमारा मंदिर की शोभा देखे, इन चिनारों की शोभा। जहां आप देखते हैं, आप कश्मीर में चिनार रही नहीं कहीं, मगर हमारे इन भाइयों की वजह से हमारी चिनार को देखो। माता खीर भवानी स्थापन मंजगाम में भी ये दिन निहायत ही अकीदत और एहतराम से मनाया गया। माता के मंदिर पर हजारों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और हवन का एहतमाम किया। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त और दीगर तमाम इंतजामात किए गए थे। मकामी मुसलमानों ने पंडितों को ज्येष्ठ अष्टमी की मुबारकबाद दी और इस त्यौहार में शमूलियत भी की। ज़ायरीन ने इंतजामात और मकामी मुसलमानों के रोल की सताइश की। दूसरी सबसे बड़ी तकरीब माता के स्थापन वाक़े खनबरनन देवसर में अंजाम दी गई। माता त्रिपुरा सुंदरी स्थापन पर भी हजारों अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। कश्मीरी पंडित और मुसलमानों ने इस दिन को मिलजुल कर मनाया। यहां दिन भर ज़ायरीन का तांता बंधा रहा। कश्मीरी पंडितों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ऑपरेशन से ही हम आगे बढ़ सके इस मुकाम तक कि आज यहाँ हजारों लोग इस रोज इस त्योहार पर आते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दे दिया है। हम चाहते हैं कि अपने घर वापस आ जाएं, हम इनका वेलकम करते हैं और आज हमें 3 दिन हो गए यहाँ इनकी वी आर हेल्पिंग देयर थ्रू थिक एंड थिन। 30 से 40 हजार लोग कश्मीरी हिंदू जो है, कश्मीरी पंडित जो है, हिंदुस्तान के काफी हिस्सों से यहाँ पे आए हैं। तुलवलो में आए, मजगाम में आए, जूसर में आए और इस बार जो बहुत सरकार की तरफ से जो सरकारी व्यवस्था है, आई एम थैंकफुल टू गवर्नर साहब। हवाएं जो मैं इस वक्त ले रहा हूँ, ये हवाएं सचमुच पीस लेके आई है, खुशी लेके आई है। शायद हमें दस्तक दे रही है हमारे दिमाग में कि आप आ जाओ, ये हवाइयाँ आपका इंतजार कर रही है। हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, जो स्वागत करते हैं हमें। जो भी हमें मिला बहुत ही प्यार से मिला। यही एक यहाँ पर हमने एक माता से यही मांगा है कि हमारे इसमें अमन अमान आ जाए, कश्मीर फिर फले और फूले, यहाँ पर पीस आ जाए। भी कहा है कि जो भाईचारा यहाँ मुसलमानों और पंडितों के बीच में रहा करता था, वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है और यहाँ के पंडित लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और लोकल्स का सपोर्ट है, हर तरफ की सपोर्ट है, हमें हेल्प मिल रही है कि यहाँ आने में, और वो भी लोग खुश हैं कि एक बार वे फिर से अपने पंडित भाइयों को देख रहे हैं यहाँ पर। ज्येष्ठ अष्टमी पर कश्मीरी पंडित सभा हैदराबाद ने सामूहिक रंगनिया पूजा का एहतमाम किया। जिला रंगारेड्डी के दही इलाके कनका मामड़ी की अमरनाथ स्वामी मंदिर में पूजा पाठ का एहतमाम किया गया था। 40 कश्मीरी श्रद्धालुओं ने पूजा की रसूम में शिरकत की। मुक़द्दस दिन पर रोजा रखने वालों के लिए नवेद और लंच का भी एहतमाम किया गया था। इनको ब्लेसिंग देने के लिए प्रार्थना लिखी तो आपका युग अच्छा रहे और आइंदा सब लोग इधर आए और कश्मीरी लोग यहाँ आपस में मिलेंगे और अच्छी तरह बरादरी में बैठेंगे। It has been a long way, lot of struggle, and now our new generation, they have succeeded in identifying a place with support of local people in and around this area. कश्मीरी पंडित सभा ने यहाँ पर एक यज्ञ संपन्न किया जिसमें माता खीर भवानी का यज्ञ किया गया। विश्व कल्याण के लिए पूरी आहुति दी गई। ज्येष्ठ अष्टमी मना रहे हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है और हम यहाँ आश्रम बना रहे हैं, जल्दी से शुरू करेंगे बनाने का, बस माता की कृपा होनी चाहिए। जो ये पूजा चल रही है ये हम असली कश्मीर में करते हैं, जो खीर भवानी के नाम से है। जब माता खीर भवानी गांधरबल तुलमुला में होती है। अभी हम नहीं जा सकते, किसी सिचुएशन के कारण हम वहाँ नहीं जा सकते, मिलिटेंसी के कारण। जो हमने आज यहाँ पे स्थापित किया वो पूजा हमने आज यहाँ पे की है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारनी जेठ मुबारक वो गमत कश्मीर मतलब बहुत बार नहीं गई हूँ, बस अकलिटी गमत मगर मे तत हवन वुचमुत। आज जेठ अठम यह खीर भवानी हुक दिन आज सेलिब्रेट करान कश्मीर मज तो अस हेकिव न कश्मीर गत वन तो वन आज यतन करान हवन जेठ हतम। कश्मीर पंडित सभा की तरफ से माता जी का होम किया और उनका पूजा किया। उधर मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में क़याम पज़ीर कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी के त्यौहार को लेकर काफी जोशो खरोश देखा गया। शालीमार गार्डन दिल्ली में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। ज्येष्ठ अष्टमी के मुक़द्दस मौके पर पंडितों ने भरपूर अंदाज में त्यौहार मनाया।
जिला गांधरबल तुलमुला की माता खीर भवानी मंदिर आने वालों में कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के लीडरान भी शामिल रहे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर, लोक जनशक्ति के लीडर संजय सराफ और J&K पीपल्स मूवमेंट के डॉक्टर शाह फैसल मंदिर पहुंचने वालों में शामिल थे। गवर्नर सत्यपाल मलिक और GOC 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने मंदिर में पूजा की और अकीदतमंदों से बातचीत की। राम माधव ने कहा कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों को पूरे वक़ार के साथ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए वादी वापस लाने के लिए पाबंद अहद है। फारूक अब्दुल्ला ने भी कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी की तमन्ना जाहिर की। भवानी का दर्शन करके मेरा बहुत पवित्र जीवन हुआ है। यह हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों बहनों का बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। यहाँ पर आकर हम सब ने कश्मीर में शांति, कश्मीर में विकास, सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना की है और हम चाहते हैं कि इस मंदिर का वैभव और बढ़े और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो दुनिया भर में है वे सब इस मंदिर का दर्शन करने वापस दोबारा आए और कश्मीर घाटी में भी उनका जीवन शांति, सुरक्षा और सम्मान के साथ चले, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। यही प्रार्थना और कामना माता खीर भवानी से हमने की है। इस दिशा में कई कदम उठाए जाएंगे। हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को सम्मान, सुरक्षा के साथ वापस इस घाटी में लाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। खीर भवानी के मेले पे आई हैं, प्रार्थना कर रही हैं अपने लिए भी और वतन के लिए भी। एक खुशी का त्यौहार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक शुरुआत होगी इन भाई बहनों का यहाँ इस से वापस आना, अपना घर संभालना। ये हमारी दुआ है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, उसको आगे बढ़ाएंगे और हम लोग तरक्की करेंगे वतन के साथ। साबिक मेंबर असम्बली मीर सैफुल्ला, साबिक मेंबर पार्लियामेंट फैज अहमद मीर, साबिक मेंबर असम्बली कुपवाड़ा एडवोकेट बशीर अहमद डार ने भी टिकर कुपवाड़ा में हाजिरी दी। कांग्रेस लीडर हाजी फारूक मीर, NC लीडर सैयद रफीक शाह ने मेले में हाजिरी दी। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद दी और कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए ठोस इक़दामात पर जोर दिया। बहुत ही खुशी का मुकाम है कि आज यहाँ पर जो खीर भवानी टिकर में हम देख रहे हैं, भारी तादाद में हमारे पंडित भाई आए हैं, तो इनका हम खैर मुकदम करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल झलक दिख रही है इस चीज़ की हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की। यहाँ पे भी आपने देखा जब मेरी इन बुजुर्गों से बात हुई तो ये कितना मतलब यहाँ के कितनी मतलब यादें इनकी जो आज ये बता रहे हैं कि ताज़ा हुई। ये इनको आना चाहिए, यहाँ पे इनका घर है अपना, इनकी अपनी ज़मीनें हैं, इनको आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। हालात ख़राब हुए तब से आज तक यही एक इंडिकेशन है जो हमारे भाईचारे की एक अलामत है और निशानी है, ये कायम रहनी चाहिए। और इसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मन बनाए, बहादुरी से आप आए, हम आपका वेलकम करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर अनंतनाग अल्ताफ अहमद कल्लू ने लोगरीपुरा के माता के स्थापन पर हाजिरी दी और कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। NC लीडर एडवोकेट अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने भी पंडितों को मुबारकबाद पेश की है। लीडरान ने कश्मीर में कायम अमन और खुशहाली के साथ कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत वादी वापसी की ख्वाहिश भी की। अच्छा दिन है, माता खीर भवानी का जो अशमुकाम में भी मनाया गया। आज मैंने वहाँ पे अपनी हाजिरी दे दी। अपने जो हमारे लोकल पंडित भाई है सारे आज जोक दर जोक आए थे, उनके साथ हमने मिले उनसे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारे इंतजामात किए हुए थे। और हमारी दुआ यही है कि ये आए अपने घरों में बैठे जैसे हम रह रहे थे, आपस में मेल मिलाप के साथ एक भाईचारा जो हमारा था। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि ये वापस आए, अपने घरों में आ जाए। रसाना केस में 6 मुलजिम शामिल थे। हालांकि सांजीराम के लड़के विशाल जंगुत्रा को रिहा कर दिया गया है। इस मामले में कलीदी मुलजिम के तौर पर सांजीराम समेत 2 और को 25 साल की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद सांजीराम के खानदान से न्यूज़ 18 ने बात की। सांजीराम की बीवी ने फिर कहा है कि वो CBI जांच की मांग करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मामले को सियासी रंग देने के नतीजे में ऐसा फैसला आया है। मेरे को थोड़ा बड़ा हौसला मिला
शुक्रिया न्यूज का जिसने मेरे बेटे को इतना मेरा उस हल्का किया है। 1.5 साल हुआ मैंने रोंदे। CBI हो जाए, ये बोलते हैं CBI की मांग है, CBI हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाए हमको, सभी को इंसाफ मिलेगा, सभी आगे सच आएगा। सच क्या है, झूठ क्या है, पूरी राजनीति नहीं है इसमें चली यार, केस इं राजनीति चली चल, सबने अपनी अपनी देखी, साढ़े बारे च कौन नहीं सोचे। उन्हें कौन देनी है, उन्होंने बच्चा जेड़ा उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, उनको तो खानी है, जिसकी पढ़ाई भी बर्बाद की थी, 2 साल टूट गए इन्होंने, वो कौन देना, पहले गवर्नमेंट एक गारंटी ले उन्हें दिया उस बच्चे की। सांजी राम, दीपक वगैरह जितने भी जो लोग हैं इनको गलत तरीके से फंसाया हुआ है। उसका एकमात्र हल था जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया 1 साल पुरअमन तरीके से, लोकतंत्र तरीके से, जहां बैठकर सरकार के साथ नाराजगी बताई थी कि केस गलत है, केस की इंक्वायरी CBI से होनी चाहिए। उड़ी में आर्मी के कालापहाड़ ब्रिगेड ने अवामी मेले का एहतमाम किया। ब्रिगेड ग्राउंड पर मुनक्किद प्रोग्राम में सरहदी इलाके के लोग कसीर तादाद में शरीक हुए। फौज और सरहदी इलाके के लोगों में रवाबित को फरोग देने के मकसद से हर उम्र के लोगों के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। खेल मुकाबलों में बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुकाबलों और प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वालों में रकमी इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। सिविल, पुलिस इंतजामिया और 12 ब्रिगेड के अफसरान इस मौके पर शरीक रहे। लोगों ने ऐसे प्रोग्राम साल में 2 बार मुनक्किद कराने का मशवरा दिया। मेलों से लोगों को बेनिफिट मिलता है और ये मेले बार बार होने चाहिए, साल में 1 बार नहीं होना चाहिए, 2 बार होने चाहिए, 3 बार होने चाहिए, ताकि हमारे लोग जो हैं इसको अवेल कर सके और लोगों को पता चल सके कि बाहर की दुनिया में यहाँ पे क्या है। क्योंकि हमारे उड़ी में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया गया है। श्रीनगर में 2 रोज़ा इमाम खुमैनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान तालीम के शोबे के साथ साथ मुआशरती मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ ईरान से आए कई डेलीगेट शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का इनकाद अंजुमन शरीशियान ने किया है। कल्चरल अकेडमी के ऑडिटोरियम में अदबी मरकज कमराज की जानिब से इजलास का इनकाद किया गया। इजलास का मकसद मुल्क में उभरती हुई लिसानी और सकाफती सूरत हाल के तनाजुर में तबादला ख्याल करना था। शुरका ने इस आज़म का इरादा किया कि कश्मीरी ज़बान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। इजलास की सदारत मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। डॉक्टर अजीज़ हाजनी, वाशी सईद भी मौजूद रहे। रियासती सतह की एक तंजीम को कायम करने के लिए ग्रुप कायम किया गया। गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स के एक्सटेंशन काउंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। याद रहे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स हिंदुस्तान का ये मायनाज इदारा है। ये इदारा कश्मीरी तलबा के लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। अकाउंट्स के मैदान में वादी के तलबा के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम होने की उम्मीदें हैं। इंस्टीट्यूट ने पहले बैच को मुफ्त में एडमिशन देने की पेशकश रखी है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सैयद अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने सथारन खाग बडगाम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि महकमा सथारन को पोटैटो सीड विलेज के तौर पर फरोग देना चाहता है। उनका कहना था कि इससे वादी में आलू की पैदावार में इनकलाबी तब्दीली रुनुमा होगी। नॉर्थ कश्मीर ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने GPRS के निफाज को नाकाबिल कबूल करार दिया। कमेटी ने इस सिलसिले में 12 जून को दी गई हड़ताल की कॉल की हिमायत का ऐलान किया। उनका कहना है कि GPRS का निफाज ट्रांसपोर्टर्स पर जुल्म है।